Hello students, now we see some examples from Mathematics 1 Chapter 4 Financial Planning. See the examples. Practice questions. Messrs. Real Paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2,800. If the rate of GST is 28% is important, then find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice. वर्ड प्रॉब्लम में फिर एक बार मैं कहता हूं, वर्ड प्रॉब्लम केयरफुली रीड करना चाहिए। क्या दिया है और क्वेश्चन क्या है, ये दोनों बातें 100% आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये आप समझ गए तो बाकी सब कुछ आसान हो सकता है। सी, मेसर्स रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स of luster paint, so number of tins is equal to 2. Then taxable value of each tin is rupees 2,800. Taxable value of a tin means 1 tin is rupees 2,800. CGST और SGST इक्वल होता है। यहां दिया है रेट ऑफ GST इज 28%। रेट ऑफ GST इज 28%। अगर टोटल GST 28% है तो सिंपल है, CGST उसका आधा चाहिए और SGST आधा चाहिए। इसका मतलब 28/2 14% CGST and 14% SGST. So CGST is equal to rate of CGST into taxable value. रेट ऑफ GST CGST है 14% एंड टैक्सेबल वैल्यू है 2,800 मल्टीप्लाई बाय 2. Why it is multiply by 2? Because number of tins is 2. Calculation is there only. 20 get cancel. We get 28 to the 56 into 14 is nothing but rupees 784. Therefore, amount of CGST is equal to rupees 784. We know all amount of CGST and amount of SGST are equal. Therefore, we can say amount of SGST is equal to also rupees 784. The question is, find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice. Therefore, amount of CGST is equal to 784, amount of SGST is equal to 784 is the answer. इतना सिंपल होता है ये सब। See the next example. The total value with GST is important. यहाँ taxable value और GST अलग नहीं दिया है, टोटल वैल्यू दी है इंक्लूडिंग GST ऑफ ए रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज रुपीज 1,770. ओके, रेट ऑफ GST इज 18% ऑन द टॉय. फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू CGST एंड SGST फॉर दिस टॉय कार. गिवन डाटा इज टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 1,770. ओके, now let us consider taxable value of a car is rupees X. Taxable value rupees X. Rate of GST is 18%. यहाँ दिया है हमें rate of GST is 18%. So amount of GST is equal to 18% multiplied by taxable value X. It means 18/100 into X. So total value is nothing but taxable value plus GST. taxable value है X और GST है 18x/100. बट हमें टोटल वैल्यू जो है वो यहाँ दी है 1,770. सो इक्वेशन तैयार हो गया. टोटल वैल्यू 1,770 इज इक्वल टू 118x/100. यहां हमने एडिशन कर दिया. 100x plus 18x divided by 100 is nothing but 118/100. So solve the equation. X as it is,
1770 multiply by 100 divide by 118. After calculation we get x is equal to rupees 1500 or 1500. So what is x? x is the, हमने यहाँ ये किया था, taxable value of toy car is x. So taxable value of car is 1500. टैक्सेबल वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब हमें निकालना है CGST एंड SGST। तो CGST एंड SGST निकालने के लिए अमाउंट ऑफ GST 18% GST है। अमाउंट ऑफ GST इज नथिंग बट 18/100 मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट रुपीज 270। वी नो ऑल अमाउंट ऑफ CGST or amount of SGST is nothing but half of GST. So amount of CGST is equal to 1/2 into 270 is nothing but 135. So amount of CGST is equal to 135. Obviously amount of SGST is equal to also 135. यहाँ टैक्सेबल वैल्यू और GST अलग नहीं दिया था, टोटल वैल्यू दी थी, इसलिए हमने टैक्सेबल वैल्यू x कंसीडर की और उसके बाद CGST और SGST निकाला। वन मोर एग्जांपल, प्रसाद परचेस्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। द डिस्काउंट ऑफ 5% was given on the printed price of rupees 40,000. See carefully. Prasad purchased washing machine. Discount of 5% was given on the printed price of 40,000. Printed price 40,000 है, उस पे 5% डिस्काउंट दिया है। Rate of GST charge was 28%. Each and every example में ऐसा GST का रेट जो है वो रेट दिया होता है, वो ध्यान में नहीं रखना है। Find the purchase price of washing machine. Also find the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice. यहाँ भी हमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, सेकेंड CGST एंड थर्ड SGST. सो हम शुरुआत करते हैं। प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू 40,000. इट इज गिवन। इस पे डिस्काउंट दिया है 5%. सो हियर रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 5%. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू, टैक्सेबल वैल्यू जो है वो टैक्सेबल वैल्यू होगी प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। जो भी वैल्यू आएगी वही टैक्सेबल वैल्यू होगी। यहां प्रिंटेड प्राइस है 40,000 माइनस डिस्काउंट 5%। प्रिंट तो डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट कितना है वो हम पहले निकालेंगे। डिस्काउंट इज 5% ऑफ टोटल प्राइस, प्रिंटेड प्राइस 5/100 इंटू 40,000। 20 गेट कैंसल, 5 4s are 20 and 20 rupees 200 is the discount, and therefore taxable amount is nothing but printed price 40,000 minus discount 2,000, and so taxable value is nothing but 38,000. जो भी टैक्स लगेगा वो टैक्सेबल वैल्यू पे लगेगा। इसलिए रेट ऑफ GST, यहां आप सीधा रेट ऑफ GST निकाल सकते हैं या रेट ऑफ CGST निकाल सकते हैं, दोनों भी सेम है। यहां रेट ऑफ GST निकाला है, इट इज 28%। सो अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू 38,000 मल्टीप्लाई बाय 28%। 20 एंड 20 गेट कैंसल, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 10,640 इज द अमाउंट ऑफ GST। अमाउंट ऑफ GST के बाद हमें CGST एंड SGST बताया है। तो CGST एंड SGST निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है। अमाउंट ऑफ CGST इज नथिंग बट GST बाय 2 और 1/2 इंटू अमाउंट ऑफ GST। सो 1/2 इंटू 10,640
rupees 5,320. So amount of CGST is equal to 5,320. Amount of SGST is equal to also rupees 5,320. Therefore, now purchase price of washing machine. Purchase price of washing machine हमें यहाँ निकालनी है. Purchase price of washing machine is nothing but taxable value plus amount of GST. Taxable value है 38,000, हमने पहले निकाली थी, और अमाउंट ऑफ GST, इट इज नॉट CGST और SGST. टोटल अमाउंट ऑफ GST इज नथिंग बट CGST प्लस SGST. तो वो अमाउंट है 10,640. सो वी गेट परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू रुपीज 48,640 रुपीज. वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया है और क्वेश्चन क्या है, इस पे अगर हम ध्यान दें तो स्टेप बाय स्टेप हम आंसर तक पहुंच ही जाते हैं. सीधी नेक्स्ट, GST इन ट्रेडिंग चेन. हर बार ऐसा नहीं होता कि जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट लास्ट कंज्यूमर जो है उसके पास दे दे. वो चेन होती है. चेन कैसी होती है? सी हियर, पहले मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को फिनिश करता है, उसके बाद वो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है. होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देता है, और रिटेलर जो है वो रिटेलर कंज्यूमर को देता है. इसका मतलब ये हो गया मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर एक चेन है. इस चेन को हम ट्रेडिंग चेन कहते हैं. GST इन ट्रेडिंग चेन. ये चेन तो हो गई, उसका प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि GST लेते समय ये GST किस तरह ले ली जाए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्ट देता है तो होलसेलर को GST देना पड़ता है. होलसेलर जब रिटेलर को देता है तो रिटेलर को GST देना पड़ता है. रिटेलर कंज्यूमर को देता है तो कंज्यूमर को भी GST देना पड़ता है. और उस सब GST जो है वो GST कंज्यूमर पे आता है. तो कंज्यूमर 1, 2 और 3 टाइम्स GST देगा, और वो कंज्यूमर पे थोड़ा सा अन्याय होगा. इसलिए ट्रेडिंग चेन जो है वो ट्रेडिंग चेन तैयार की, जिस ट्रेडिंग के चेन की बजाय यहाँ होलसेलर ने जो GST दिया था वो उसे वापस मिलेगा, रिटेलर ने जो GST दिया था वो भी उसे वापस मिलेगा, और सिर्फ GST कंज्यूमर देगा, एक ही बार देगा. बार बार GST देने की जरूरत नहीं है. इसे ही हम ट्रेडिंग चेन कहते हैं. ट्रेडिंग चेन में भी 2 टाइप्स है, विद इन स्टेट, आउट ऑफ स्टेट. ये सब हम देख रहे हैं तो वो विद इन स्टेट है. सी सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट. व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? इसे ITC कहा जाता है. इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? GST is levied and collected at every stage of trading from manufacturer to consumer. When trader pays GST at the time of purchase, it is called input tax. See, when trader pays is important. Trader pays GST at the time of purchase is input tax. Okay, or he collects GST at the time of sale, which is called output tax. टैक्स 2 तरह के होते हैं, जब मैं परचेस करता हूं और जब मैं सेल करता हूं. जब मैं परचेस करता हूं तो मेरे पॉकेट से GST देना पड़ता है, देना पड़ता है, इसलिए उसे इनपुट टैक्स कहते हैं. एंड ही कलेक्ट GST. जब मैं सेल करता हूं तो दूसरों के पॉकेट से मैं GST लेता हूं, और दूसरों के पॉकेट से मैं GST लेता हूं, इसलिए उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं. इस तरह आप ध्यान में रखिए. मेरे पॉकेट से जब GST जाता है तो इनपुट टैक्स, दूसरों से GST मैं लेता हूं एट द टाइम ऑफ सेल, इट इज आउटपुट टैक्स.
एट द टाइम ऑफ पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट, जब ये जीएसटी गवर्नमेंट को सबमिट करने की टाइम आती है, तो एट द टाइम ऑफ पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट, ट्रेडर डिडक्ट्स द इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स एंड पेज द रिमेनिंग टैक्स। गवर्नमेंट को जब टैक्स हम सबमिट करते हैं तो गवर्नमेंट को ट्रेडर जो है, वो ट्रेडर क्या करता है, ही डिडक्ट द इनपुट टैक्स। मेरे पॉकेट में से जो टैक्स गया था वो आउटपुट टैक्स से डिडक्ट करता है, आउटपुट टैक्स से डिडक्ट करता है और रिमेनिंग अमाउंट सबमिट करता है टू द गवर्नमेंट। दिस डिडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस तरह का जो डिडक्शन होता है वो डिडक्शन इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट जीएसटी पेएबल टू गवर्नमेंट, जीएसटी पेएबल टू गवर्नमेंट इज नथिंग बट आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। समझो मैंने मेरे पॉकेट से 100 रुपीज टैक्स दिया है, जीएसटी दिया है, और सामने वाले से 150 रुपीज लिया है, तो मैं गवर्नमेंट को 50 रुपीज सिर्फ सबमिट करूंगा, क्योंकि आउटपुट टैक्स है 150 माइनस इनपुट टैक्स था 100 रुपीज। सो 150 minus 100 is equal to 50 is the GST payable to the government. Hope ITC आपके ध्यान में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल के साथ अगर ये हम देखें तो अधिक ध्यान में आएगा। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन। Amir Enterprises purchased chocolate sauce bottles and paid GST of rupees 3,800. He sold those bottles to Akbari Brothers and collected GST of rupees 4,100. Mayank Food Corner purchased this bottle from Akbari Brothers and paid GST of rupees 4,500. Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable CGST and SGST. ट्रेडिंग चेन जो है वो ट्रेडिंग चेन आपको ध्यान में आई है नहीं आई है? देखो ट्रेडिंग चेन किस तरह की हुई। यहाँ मैन्युफैक्चरर ने आमिर एंटरप्राइजेस को अपना प्रोडक्ट दिया, आमिर एंटरप्राइजेस ने अकबरी ब्रदर्स को अपना प्रोडक्ट दिया और अकबरी ब्रदर्स ने मयांक फूड कॉर्नर को अपना प्रोडक्ट दिया। ये है ट्रेडिंग चेन। और क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पूछा है, सी द क्वेश्चन, फाइंड अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज। ईच एंड एवरी स्टेज जीएसटी अमाउंट किस तरह की जाती है ये हमें पूछा है। और लास्ट में एंड हेंस फाइंड पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितना है ये भी हमें यहां कैलकुलेट करना है। तो हम इस ट्रेडिंग चेन से ईच स्टेज जीएसटी का क्या होता है ये देखेंगे। सी आमिर एंटरप्राइजेस, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब आमिर एंटरप्राइजेस के बारे में हम सोच रहे हैं। सी हियर, आमिर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट एंड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 3,800। पेड जीएसटी इसका मतलब अपने पॉकेट से जीएसटी दिया। सो इनपुट टैक्स 3,800। He sold those bottles to Akbari Brothers and collect GST. Tax लिया 4,100. So output tax is 4,100. So here output tax 4,100 minus input tax 3,800 rupees 300 is GST payable by Amir Enterprises. Number 1. Number 2. CGST and SGST बताया है। We know all CGST and SGST is half of GST. So CGST is equal to half of 300. It is 150. Similarly, SGST is equal to 150. This is related to Amir Enterprises. Now see about Akbari Brothers. यहाँ GST payable is output tax minus input tax.
इन्होंने अपने पॉकेट से 4100 दिया था, दूसरों से कलेक्ट किया 4500। सीन मेन एग्जांपल, यहां 4100 दिया था। मयंक फूड कॉर्नर परचेस दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स एंड पेड GST 4500। मयंक ने 4500 इसे दे दिए और इसने 4100 अकबरी ब्रदर्स को दिए थे। सो हियर आउटपुट टैक्स हो गया 4500 एंड इनपुट टैक्स हो गया 4100 इज इक्वल टू 400। ऑब्वियसली CGST is equal to SGST is equal to half of 400 is 200. Okay, so Akbari brothers ने GST payable 400 and CGST 200. इसी तरह दो स्टेप में GST हमने पे किया। See next example. Messrs Jay Chemicals purchased a liquid soap for 8,000 with GST and sold it to the consumers for 10,000 with GST. Rate of GST is 18%. Find the amount of CGST and SGST to be paid by Jay Chemical. See here. Note that here the price are including GST. यहां दिया है with GST. So हमें मालूम है total value is nothing but टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। टोटल वैल्यू का मतलब है विथ GST। इट इज नथिंग बट टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। इफ द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लिक्विड सोप इज ₹100, let us consider it is. Let us consider if the taxable value of liquid soap is ₹100, then the total value is 118 because GST is 18%। 18% का मतलब होता है ₹100 को 18 रुपीज GST लगेगा, तो टोटल वैल्यू जो है वो होगी 118। सो द रेशो टोटल वैल्यू अपॉन टैक्सेबल वैल्यू इज कांस्टेंट एज द रेट ऑफ GST इज सेम। टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टैक्सेबल वैल्यू, ये जो रेशो है वो रेशो कांस्टेंट होगा। यहां रेशो आएगा टोटल वैल्यू 118, टैक्सेबल वैल्यू 100। सी हियर, टोटल वैल्यू 118, टैक्सेबल वैल्यू 100। इसी तरह यहां टोटल वैल्यू 8000 है, टैक्सेबल वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए टैक्सेबल वैल्यू BX, टैक्सेबल वैल्यू को हम X कहते हैं। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट X इज इक्वल टू 8000 into 100 divided by 118. 8000 into 100 divided by 118. After calculation, we get the value of X is 6779.66. 2 decimal तक ही आपको आंसर निकालना है। So, GST paid at the time of purchase is nothing but total value minus taxable value. GST paid at the time of purchase is nothing but total value minus taxable value। यहाँ total value है 8000 and taxable value है 6779.16। Therefore input tax is 1220.34। इनपुट टैक्स क्रेडिट इसे कहते हैं 1220.34। For total value of 10,000, let the taxable value be Y. For the total value of ₹10,000, let the taxable value be Y. अगर taxable value हम Y कहते हैं तो अगेन रेशो वही होगा, टोटल वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू, टोटल वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू। After cross multiplication we get Y is equal to this, which is equal to 8474.58. So output tax is 10,000 minus this, 10,000 minus this, which is equal to 1525.42. Equation number 2. GST payable
is nothing but output tax minus ITC. GST payable is output tax minus ITC, input tax. Output tax है 1525.42 and input tax है 1220.34. अगर इसका सब्ट्रैक्शन किया जाए तो हमें मिलता है 305.08. So payable CGST is equal to payable SGST, which is equal to 305.08 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये GST है और हमें CGST एंड SGST निकालना है. सो आफ्टर डिवाइडेशन वी गेट 152.54 and therefore Jai Chemical has to pay 152.54 CGST and उतना ही SGST, क्योंकि value of CGST and value of SGST are always same. Next example, prepare B2C, business to consumer tax invoice using given information. Write the name of the supplier, address, state, date, invoice number, GSTIN, etc. as per your choice. Supplier, measures, address, state, date, invoice number, GSTIN. Particulars दिए हैं. Rate of mobile battery 200, rate of GST 12%, HSN 8507, one piece rate of headphone 750, rate of GST 18%, HSN 8518, one piece. यहाँ prepare business to consumer tax invoice. फर्स्ट में हमने देखा था टैक्स इनवाइस कैसा होता है. यहाँ वही टैक्स इनवाइस तैयार करने के लिए हमें कहा है. इट्स सिंपल. सी हियर टैक्स इनवाइस. पहले एड्रेस लिखना है हमें यहाँ सप्लायर्स का. तो मैंने एड्रेस लिखा महावीर इलेक्ट्रॉनिक्स 143 शिवाजी रास्ता मुंबई, पिन कोड नंबर महाराष्ट्र. याद है आपको पहले इनवाइस टैक्स इनवाइस मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था. ऐसा ही था. महाराष्ट्र के बाद मोबाइल नंबर एंड ईमेल एक लाइन में लिखा तो भी चलता है, उसके 2 लाइन हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट हैंड साइड GSTIN नंबर 15 डिजिट्स एंड डेट, ये दोनों लिखने हैं. उसके बाद सीरियल नंबर, HSN, प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, CGST, SGST एंड टोटल. ये ध्यान में रखना ही है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है. सी हियर HSN कोड दिया था मोबाइल बैटरी का 8507, रेट ₹200 पर पीस, क्वांटिटी 1. सो टैक्सेबल अमाउंट होगी, एक ही पीस लिया है 200. CGST यहाँ GST 12% दिया है. सी हियर GST 12% और हेडफोन के लिए है GST 18%. सो हियर 12% बाय 2 6%, 6% और हेडफोन के लिए 9%, 9%. 6% 200 का. सो 200 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 100. 100 2 जा 2 6 जा 12 12. यहाँ इसी तरह हेडफोन के लिए HSN कोड, रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स 9%, 67.50, 67.50. इसका एडिशन हो गया टोटल में टैक्सेबल अमाउंट प्लस टैक्स ऑफ CGST प्लस टैक्स ऑफ SGST इज इक्वल टू टोटल रुपीज 224. हेडफोन के लिए टोटल 885 एंड देयरफॉर इसकी टोटल जो है 1109 रुपीज. इसी तरह का टैक्स इनवाइस आपको तैयार करने के लिए कहा जा सकता है. इसलिए टैक्स इनवाइस बनाते समय क्या क्या लिखना है ध्यान से देखिए. फिर एक बार सप्लायर, GSTIN नंबर, डेट और ये चार्ट, ये ध्यान में रखते हुए ऐसा ही टैक्स इनवाइस आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना है. Suppose a manufacturer sold the cycle for a taxable value of ₹4,000 to the wholesaler. Wholesaler sold it to the retailer for ₹4,800
taxable value. Retailer sold it to the consumer 5,200. Rate of GST is 12%. Complete the following activity to find the payable CGST and SGST at each stage training. इससे आपको ये पता चल गया होगा कि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक आते वक्त अमाउंट जो है वो अमाउंट कैसी बढ़ती है, हर एक का प्रॉफिट उसमें इंक्लूड होता है। यहां क्या हो गया देखो, मैन्युफैक्चरर ने 4,000 को सेल की साइकिल, उसने अपना प्रॉफिट मिला के 4,800 में सेल की, और उसने रिटेलर ने कंज्यूमर के देते वक्त अपना प्रॉफिट मिला के 5,200 में दे दी। अगर ये कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर से लेता तो इसका प्रॉफिट होता, बराबर है ना। तो इसी तरह अगर ये चेन बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ता है और अमाउंट भी बढ़ती है। यहां हमें क्वेश्चन दिया है, रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो हियर सी देखिए, ट्रेडिंग चेन, मैन्युफैक्चरर के बाद आता है होलसेलर, होलसेलर के बाद आता है रिटेलर, और रिटेलर के बाद आता है कंज्यूमर। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए यहां आपको ये सब भरना पड़ेगा। आउटपुट टैक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर इज 12% ऑफ 4,000। इसका मतलब 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100, जो भी अमाउंट आएगी वहां हमें लिखनी चाहिए। जीएसटी पेएबल बाय मैन्युफैक्चरर इज 480। नाउ आउटपुट टैक्स 12% of 4,800 is 576। मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। सो जीएसटी पेएबल 576 माइनस 480 is 96। आफ्टर दैट आउटपुट टैक्स 12% of 5,200। 5,200 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 कैंसल हो गए और यहां मिला 52 इंटू 12। जो भी वैल्यू आएगी तो इस फ्रेम में आपको लिखनी है। जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। सो यहां आपको आउटपुट टैक्स जो मिला वो लिखना है, इनपुट टैक्स लिखना है और उसका सब्ट्रैक्शन करना है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट द स्टेज ऑफ ट्रेडिंग। सी हियर, मैन्युफैक्चरर जीएसटी पेएबल अगर 480 है तो सीजीएसटी 240 होगा, एसजीएसटी भी 240 होगा, क्योंकि आपको पता है सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी। होलसेलर 96 जीएसटी है तो डिवाइड बाय 2 सीजीएसटी होगा, डिवाइड बाय 2 एसजीएसटी होगा, यानी 48। रिटेलर जो है वो रिटेलर को जीएसटी पेएबल कितना है, एग्जाम्पल में हमने देखा था, तो वो जीएसटी आपको लिखना है, यहाँ डिवाइड बाय 2 करना है, यहाँ डिवाइड बाय 2 करना है और टोटल करनी है। एग्जाम्पल वंस अगेन, फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इनवाइस 1, 2, 3 जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% और चार्ज फॉर द आर्टिकल सप्लाइड। नंबर 1 स्टेज, स्टेज नंबर 2 एंड स्टेज नंबर 3। सी हियर, टैक्सेबल वैल्यू है 5,000, यहां टैक्सेबल वैल्यू हो गई 6,000 और यहां टैक्सेबल वैल्यू हो गई 6,500। कंज्यूमर की टैक्सेबल वैल्यू जो है कितनी है ये आपको बताना है। रेट ऑफ जीएसटी 12% है। सी, यहां क्वेश्चन दिए हैं, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेएबल अंडर ईच हेड बाय द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर at the time of filling the return to the government. At the end, what amount is paid by the consumer? Write which of the invoice issued are B2B and B2C. B2B means business to business and B2C means business to consumer. See here, tax invoice of manufacturer. Manufacturer का tax invoice कैसा होगा? Price of article होती 5,000, सो CGST 6% एंड SGST 6% होता है। CGST होगा 300, SGST होगा 300।
6% ऑफ 5,000 इज 300. सो टोटल हो गई 5,600. टैक्स इनवाइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, प्राइस आर्टिकल था 6,000, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, 360, टोटल हो गया 7,720. ओके. टैक्स इनवाइस ऑफ रिटेलर 6,500 टैक्सेबल अमाउंट थी, मल्टीप्लाई बाय 6%, इट इज 390, टोटल अमाउंट हो गई 7,280. सो मैन्युफैक्चरर इस तरह हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह हो गया. डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, 360 में से मैन्युफैक्चरर को जो 300 रुपीज दिए थे वो माइनस कर दिए. सो इन्होंने पेएबल CGST जो है पेएबल GST जो है 60 हो गया, यस GST भी 60 हो गया, तो उसका पेएबल GST हो गया 120. इसने भी वही किया, 390 में से 360 दिए थे, इनपुट टैक्स माइनस कर दिया, 30 रुपीज, 30 plus 30, 60, and therefore total tax is 390 and 780. So from invoice third, it is clear that the customer will get article for rupees 7,280 rupees. Okay. The tax invoice of manufacturer to distributor, manufacturer भी businessman है, distributor भी businessman है, so it is B2B. टैक्स इनवाइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर भी बिजनेस करता है, रिटेलर भी बिजनेस करता है, वंस अगेन B2B. एंड द टैक्स इनवाइस ऑफ रिटेलर टू द कस्टमर इज B2C, क्योंकि यहां रिटेलर बिजनेसमैन है, कस्टमर बिजनेस नहीं करता, वो उसकी नीड है, इसलिए B2C यहां कहा जाता है. इस तरह आज हमने फाइनेंशियल प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा है. होप आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा. थैंक यू.